Hello everyone. Hi, this is Deepak here. I'm back with one more video, guys. So in the last video, we covered up 40 questions of previous year. So we'll be continuing from the 41. I've decided that I'll be covering 1,000 questions in this entire series. Although I'm, making the video in a fitful manner. I know that I have not been regular with my videos. But yes, guys, at least, two videos I will try to share with all of you in a week. So this is the second video of the series that I've started of the 1,000 questions of previous years. And just start with the video. Like, okay, chale, let's start, guys. The first word that we have, the antonym of parsimonious. What do you call parsimonious? Parsimonious are called the very, very कंजूस people, guys. जिनको हम stingy भी बोलते हैं, जिनको हम चीप स्केट भी बोलते हैं, राइट, जिनको हम अगर बोलें तो लाइक देर आर लॉट ऑफ वर्ड, निगार्ड, very nice word, niggard, right? Penny pincher, you can say, right? There are close fisted. So there are a lot of word for parsimonious. Okay, these all are very, very important word for parsimonious. So guys, opposite हमें पूछा है, so opposite would be the prodigal one. Niggard is the synonym. These are the कम खर्चने वाले. These are those people who are, very, very economical, कम खर्चने वाले. Prodigal are the very, very, like the one who are squandering their money, who are wasting their money. तो उसको हम बोल सकते हैं prodigal. चलिए, तो पहला आंसर जो हमारा बनाएगा दैट इज prodigal, which is an opposite of parsimonious. Let's go for the next one. Which of the following has the transitive verb? Guys, transitive verb को I have explained multiple times. Transitive verb को ढूंढने के लिए what you need to do is to find the object. Object को कैसे find out करते हैं guys? You can ask question from your verb. आप अपनी verb से क्वेश्चन पूछिए, क्या और किसको, राइट, हिंदी में, या फिर इंग्लिश में पूछिए व्हाट या टू whom, राइट. तो आपको अगर आंसर मिलता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है. या सिंपल वे बोलूं तो गाइस, अगर पैसिव वॉइस बन जाए तो 99% श्योरिटी है कि देयर विल बी अ, लाइक यू कैन सो गो विद द योर ट्रांजिटिव वर्ब. तो इसमें जिसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा. माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, मुझे कोई पैसिव वॉइस का चांस नहीं लग रहा गाइस. शी डांस वेरी ब्यूटिफुली, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आगे ले जाए हम. द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट, अगेन नहीं मिल रहा है, बट ही नोज इंग्लिश, इंग्लिश इज नोन बाय हिम. ये मैं बना सकता हूं, इंग्लिश इज नोन बाय हिम, राइट. सो दिस कुड बी अ पैसिव वॉइस जो हम बना सकते हैं. इंग्लिश इज नोन बाय हिम, सो दिस कुड बी द राइट आंसर, अ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सो आउट ऑफ दीज फोर हमें हमें गाइस, मैं मानता हूं कि वी ऑल्सो शुड हैव अ नॉलेज ऑफ स्पोका, है ना. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट. So there are a lot of things in this particular one, और especially for the people who are going for the TGT PGT, थोड़ा सा आइडिया उनको होना चाहिए, राइट. चलिए, लेट्स गो फॉर द 43rd नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द फ्यूचर इम्परफेक्ट? फ्यूचर इम्परफेक्ट गाइज आर दो सेंटेंसेस विच आर इन ING. फ्यूचर इम्पैक्ट इम्परफेक्ट आर दो सेंटेंसेस विच आर इन ING. तो ING में जो भी सेंटेंस है दैट विल बी योर future imperfect tense. So this is not in ING, this is not in ING, and even this is not in ING. So D for Delhi would be the right answer. Okay guys, 44. Again they are asking for transitive verb. He runs very fast, cannot make passive voice. He speaks French very fluently. तो ये हो सकता है French is spoken by him very fluently. French is spoken by him very fluently. So यहाँ पे passive voice बन गया. It means this is transitive. Barking for an hour, no transitive. Jumped up and down in the excitement, cannot make passive voice, and it is not even the transitive verb. So transitive verbs are those verbs which carry object. Okay, and object are those things which bears the impact of the action done by verb. ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्या कहते हैं, वर्ब के एक्शन को झेलता है, एंड्योर करता है, बेयर करता है, राइट. और द बेस्ट वे टू फाइंड इट, हु और व्हाट से फाइंड करिए. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट, just try to make the passive voice, or if you are able to make the passive voice out of it,
I believe that will be the transitive verb. Okay, चलिए let's go for the 45th. Abound. Abound का जो हमें बनाना है गाइज, नाउन बनाना है. तो गाइज नाउन बनाने के लिए हम ए एन सी ऐड कर सकते हैं अबाउंड में. तो ये हो जाएगा अबाउंडेंस. अबुंडेंस. अबुंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा. ठीक है ना. अबुंडेंस का मतलब होता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा हो, प्लेथोरा हो, है ना, चीज गैलोर हो, गैलोर, प्लेथोरा, प्लेंटी, है ना. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज फॉर दिस. So the right answer will be B for Bombay. चलिए गाइस, लेट्स गो फॉर द 46. यहाँ पे काफी अच्छे वर्ड्स हैं गाइस. दीज आर द टीजीटी पीजीटी में आए हैं. His wish is tantamount. Tantamount का मतलब होता है गाइस, अगर मैं बोलूँ तो इक्वल, बराबर का. राइट, इफ आई टॉक अबाउट tantamount तो वो होता है इक्वल और बराबर का. सो हिज विश इज tantamount टू अ कमांड. उसकी विश जो है वो कमांड के बराबर है ना, उसके इक्वल है. राइट, अगर वो कोई इच्छा रखे तो समझिए वो एक कमांड दे रहा है. तो tantamount के साथ टू प्रेपोजिशन ये फिक्स होती है गाइस. और तभी मैं बार बार कहता हूं प्रेपोजिशन के लिए गाइस व्हाट वी नीड टू डू, 15 मिनट्स रीडिंग ऑन डेली बेसिस. इफ यू आर सो बिजी that you cannot give so much of time, so at least you can take out 15 minutes out of your busy schedule, can devote that 15 minutes to your reading part. Extremely important. Do not cram the language. I keep on saying, please do not cram the language. Language should not be crammed or can never be crammed. The people who are cramming the language is simply squandering or wasting their time in language. You need to imbibe yourself, you need to engross yourself, you need to have the acquisition of the language. That is the one of the best way of learning the language. Okay, I don't know why do people cram it guys. चलिए, the public are cautioned dash pickpockets. अब यानी caution मतलब होता है गाइस सावधान करना, और पिक पॉकेट्स होते हैं गाइस, यू कैन से द जेब कतरे. तो उनके अगेंस्ट ही सावधान किया जा रहा है. ठीक है, तो पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स. पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट. राइट, ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर राइट वन वुड बी दी अगेंस्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए गाइस. they were the statesman accustomed dash the management dash great affairs. accustomed के साथ गाइस टू आता है, there is no doubt about it. accustomed मतलब होता है किसी भी चीज से जान पहचान होना. ठीक है, एंड यू कैन से हैबिचुएट होना, जान पहचान होना और हैबिचुएट होना. राइट, सो accustomed के साथ क्या आएगा गाइस, दिस इज टू. accustomed के साथ क्या आएगा, टू. तो अब देखिए फर्स्ट में टू तो एक में ही है, तो इसका मतलब बाद में ऑफ ही आना है. they were statesmen accustomed to the management of great affairs. So right answer would be C for cat. अगर यही चीज आपके पास acquainted आ जाए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये. acquainted आ जाए तो acquainted के साथ with आता है, ये ध्यान रखिए. I am not acquainted with you. Who are you? I am not acquainted with you. Right? चलिए, अब बस क्रैश्ड. अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर कार में क्रैश हो गई है, तो यानी क्रैश होने का मतलब उसमें घुस गई है बिल्कुल. तो क्रैश्ड इनटू अ कार, है ना. अगर कोलाइड वर्ड आता तो कोलाइड विद होता है. ठीक है ना, कोलाइडेड विद मतलब होता है टकरा जाना. ठीक है, कोलाइडेड विद समथिंग मींस किसी चीज से टकरा जाना, ये ध्यान रखिएगा. तो अ बस क्रैश्ड इनटू अ कार. तो बस जो है कार में क्रैश कर गई, तो बस क्रैश इनटू अ कार. राइट, so we'll be doing 60 question in this video, or I'll make short videos of 20-25 questions. Will not make lengthy, so that you can cover these video in a short span of time. Or I would request you to check your performance before you, once you like see the question, please pause it or mark your answer and check your answer with my answer. Try to have the similarity of the answers. और देखिए कितने स्कोरिंग आ रहा है. चलिए, ही वैनिश डैश द डार्कनेस. तो वैनिश होता है गाइस गायब हो जाना. वैनिश होता है गायब हो जाना. ठीक है ना, लाइक मैंने बोला ना, द मोमेंट आई सी नो समवन इन फ्रंट ऑफ मी, माय इंग्लिश वैनिशेस, माय वोकैबुलरी वैनिशेस. ओके, तो वैनिश क्या होता है, वैनिश के साथ आएगा इनटू. ही वैनिश्ड इनटू डार्कनेस. चलिए, टू ब्रदर डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. तो गाइज अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है तो आपस में फॉल आउट हुआ है.
फॉल आउट का मतलब होता है गाइस क्वारल। फॉल आउट का मीनिंग होता है क्वारल। ओके, देयर इज अ फॉल आउट बिटवीन टू ब्रदर ओवर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी। टू ब्रदर्स कर लेना गाइस यहाँ पे, टू ब्रदर्स ओवर द पीस ऑफ प्रॉपर्टी। और फॉल आउट का मतलब गाइस रिपरकशंस भी होता है, ये ध्यान रखना। fallout of nuclear war will be very very gruesome. Fallout of nuclear war will be very very horrible, horrendous, deadly, है ना, gruesome, right? तो उसको बोल सकते हैं fallout। चलिए, तो fallout का मतलब यार आफ्टर मैथ या परिणाम के तौर पे भी आप देख सकते हैं। रिपरकर्शन, आफ्टर मैथ, परिणाम, आउटकम, है ना, तो उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे fallout का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर जो है वो है क्वार। चलिए, चीफ गेस्ट दैट विल डैश द प्राइज। तो गाइस देखो, गिवन तो होता है सरेंडर कर देना। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कमिट सुसाइड, दे आर एक्चुअली गिवन इनटू द लाइफ, राइट? So do not give in or do not give up study. Study is something which is a natural process and goes for a very long period of time. So I would suggest you not to give up study. If you are giving up study, you are giving into the life. अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपने जीवन के आगे सरेंडर कर दिया, राइट? चलिए, और गिव अवे होता है गाइस देना, प्राइज या डिस्ट प्राइज देना, ठीक है, या फिर कोई भी इनाम देना, ठीक है। लाइक मैं बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड या इनवाइटेड टू गिव अवे द प्राइजेस, यानी प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, राइट? यू कैन से द डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, द रेबिलियन वाज पुट अप तो होता है गाइस रिजाइड करना। पुट अप मतलब होता है रिजाइड करना या रहना। पुट इन होता है कोई भी चीज इंसर्ट करना। आई कुड नॉट पुट इन माई वर्ड्स बिकॉज ही वाज स्पीकिंग वेरी फास्ट, ठीक है। और पुट ऑफ होता है गाइस पोस्टपोन करना, राइट? पुट ऑफ मतलब यू आर पोस्टपोनिंग सम प्लान। सो व्हाई टू पुट ऑफ टिल टुमारो व्हेन यू कैन डू इट टुडे? कल पर क्यों टालना जब आज काम हो सकता है? व्हाई टू प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स, है ना? व्हाई टू कीप ऑन लिंगरिंग ऑन द थिंग्स? ओके, सो पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, और पुट डाउन होता है गाइस कुचल देना टाइप में बोल सकते हैं, क्रश कर देना, ठीक है। तो जो रिबिलियन था वो पुट डाउन कर दिया गया था, क्रश कर दिया गया, राइट? चलिए लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। प्लीज डैश द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड। तो कैंडल को क्या कर देना जब पावर रिस्टोर्ड हो जाए? तो पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है गाइस बुझाना, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटिंग्विश। इसको एक्सटिंग्विश भी बोलते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल दिस एज ब्लो आउट, राइट? पुट आउट का मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, ब्लो आउट करना। सो दिस कुड बी द राइट सिनोनिम हियर। यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा गाइस पुट आउट। सॉरी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, द क्लर्क वाज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। देखिए इसका बहुत सिंपल है और बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ये होता है पुल्ड अप। पुल्ड अप का मतलब होता है रेप्रीमांड करना, किसी को स्कोल्ड करना, है ना, किसी को एक तरीके से चेस्टाइज करना। चलिए, तो यहां पर आ जाएगा पुल्ड अप। यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? पुल्ड अप करना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, यहां पर आया पुल्ड अप करना, ये ध्यान रखिए। चलिए यहां पर पुल्ड अप हो गया गाइस, ऊपर पुट आउट हो गया। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, द ऑडियंस। देखिए टर्न ऑन तो होता है जैसे टर्न ऑन स्पीकर, टर्न ऑफ स्पीकर। टर्न ऑफ होता है बंद करना, टर्न ऑन होता है स्टार्ट करना, है ना। टर्न इन कुछ, अगर मैं बोलूं टर्न आउट आएगा यहाँ पे। टर्न आउट मतलब होता है स्पीकर के लिए ऑडियंस आई, ठीक है ना, तो उस टाइप में यहाँ पर बोल सकते। द ऑडियंस टर्न आउट द स्पीकर, यानी स्पीकर को सुनने आई, उस सेंस में यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न आउट आएगा, ये ध्यान रखें। चलिए, ही सेज दैट ही इज नॉट कट आउट। यहाँ पर आएगा कट आउट। कट आउट फॉर का मतलब होता है गाइस, ठीक है ना, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कट आउट का मतलब होता है, इसका मैं एक बार मीनिंग देख लूंगा यार। इसको 56 को एक बार रख लेंगे, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। वैसे आंसर टर्न आउट है, एक बार मीनिंग चेक कर लेते हैं कि रिजेक्ट करना तो नहीं है टर्न आउट का मीनिंग, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टर्न आउट है, एक बार चेक कर लेंगे, इसका आंसर टर्न आउट बनेगा।
चलिए, कट आउट फॉर का मतलब जो होता है वो होता है सुटेबल. यू कैन गो एंड से अप्रोप्रिएट, राइट. यू, है ना. तो अगर मैं बोलूं यू आर कट आउट टू बी अ गुड टीचर, यू आर कट आउट फॉर दिस पोस्ट, इसका मतलब वो इस पोस्ट के लिए बना हुआ है, सुटेबल है. चलिए, लेट्स गो फॉर द 58th वन. ही सेड दैट आई वांट टू टॉक टू यू. तो देखिए, ही सेड, पहले तो सबसे पहले देखिए टाइप क्या है. ये असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा. तो ही सेड का ही सेड ही रह जाता है असर्टिव में. ही सेड का ही सेड रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट आ जाएगा. आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा. वांट का क्योंकि पास्ट में है तो वांटेड हो जाएगा. टू टॉक रहेगा, टू आ जाएगा. यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे हिम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ही सेड दैट ही वांटेड टू टॉक टू हिम. ठीक, ये ध्यान रखना, राइट. चलिए, आ जाइए जल्दी से और यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट वन देख लेते हैं दोस्तों. ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे. तो अगर मैं बात करूं ही सेड, अगेन यहाँ पर क्या है, ये एक रेगुलर एक्शन है गाइस. और कोशिश करिए कि जो रेगुलर एक्शन होते हैं उनको आप चेंज ना करें. तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा. ही सेड का ही सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट आ जाएगा. और आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन है, वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होके यहाँ ही हो जाएगा. क्लीन का क्लीन्स हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ क्लीन नहीं आएगा, क्लीन्स. यहाँ पे आंसर जो है गाइस, वो हमारा आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे. राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, ये ध्यान रखिए, राइट. चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का गाइस. डू यू राइट अ गुड हैंड, यू राइट अ गुड हैंड ही सेड. तो गाइस, ही सेड है और यहाँ इन्वर्टेड, ये इंटेरोगेटिव है. इंटेरोगेटिव में आप हमेशा क्या करते हो, इंटेरोगेटिव में ही सेड का ही आस्ट कर देते हो. तो ये बनेगा ही आस्ट. और इसमें जब जोड़ने के लिए आता है, कनेक्शन के लिए, तो वो आता है वेदर. और उसके बाद अगर मैं देखूं, यू है, यू सेकंड पर्सन है ना. तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर दे आना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आई के हिसाब से लगा सकते हैं, डू यू राइट अ गुड हैंड, इसका मतलब एक सिंगुलर की बात कर रहा है. तो मैं मान सकता हूँ ही सेड टू मी बोला उसने, ठीक है ना. ही सेड टू मी डू यू राइट विद अ गुड हैंड. कई बार ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाते, एज्यूम करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आई लगा दूंगा मैं. और यहाँ पे डू यू राइट है तो ये प्रेजेंट है तो पास्ट में जा जाएगा. आई रोट अ गुड हैंड, ठीक है. तो यहाँ पर वॉज राइटिंग, हैव रिटन, दे लगा सकते थे, लेकिन कोई हिंट नहीं है कि प्लूरल है. यहाँ पर अ गुड हैंड बोल रहा है, तो इसका मतलब सारों को नहीं, एक बंदे को बोल रहा है. तो ये आंसर आएगा ए फॉर एप्पल. Right, guys, so this is a short video of 20 questions from my side. I'll keep on uploading more and more videos to give an idea about it. I'll try to keep it 10 to 15 minutes so that you're not supposed to invest much time into it, and you can cover it up within a short span of time. So you can practice these 20 questions, because in D triple SB, in KVS, we have, like KVS में तो खैर 10 number का आता है guys. You can D triple SB we have 20, and in some other exams we have, these kind of pattern like being followed by the examiner. तो आप उसको चेक कर सकते हैं. चलिए, thank you so much for watching this video. My name is Deepak, and please spread this channel to other and keep supporting me guys, है ना. So please subscribe this channel and send it to other people and press the bell icon, right. Bye bye guys, thank you so much.